म्यूजिकल सेशन टू फॉलो। और शकील साहब आ गए हमारे बीच और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया बैठे रहें। आई जस्ट मेट हिम यस्टरडे एंड ही इंट्रोड्यूस मी ऑल्सो एज एन ऑथर। हिज नेम इज श्री अरुण पावा जी। प्लीज आइए मंच, इधर आइए, यहाँ आए, इधर आइए, इधर आए। और अरुण जी कल मुझे मिले यहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द अनचार्टेड एपॉक्स, नेविगेटिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द लॉकडाउन। आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ मूविंग एक्सपीरियंस ऑफ हिज ड्यूरिंग द लॉकडाउन. So without wasting time, I'll request Arun ji to say a few words about what went into writing this book. Over to you. It's not been a long time if you consider the COVID time. So I'll give you some numbers to start with and 2 dates, if you can connect the dots. It's 25th March, 17th May, 54, 2019. So how would you connect all this? Anybody? Okay. 25th March was the first day of the lockdown. 17th May was the last day of the lockdown. COVID, lockdown. Total 54 days and 2019. Now, 2019 को शुरू हो गया था, by 20 it was in December 2019 it started. So, without going into the story behind it, we all know what this lockdown did in all our lives, our families, our friends, our neighbors. So I won't go into much. So किताब लिखने का ये एक बहाना था मेरे को कि मैं टाइम कैसे पास करूं मेरा, जो हम सब ने उस वक्त देखा था। और उस टाइम को पास करने के लिए सिर्फ एक ही था मेरे पास जरिया कि मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करूं, जिससे अगर मैं नहीं, एटलीस्ट माई ग्रैंड चिल्ड्रन शुड रिमेंबर बिकॉज दे आर नॉट विटनेस टू दिस। तो वो एक जहन मेरे दिमाग में आया और मैंने शुरू कर दिया। तो रोज़ सुबह एंड टाइम्स ऑफ इंडिया आई एम ग्रेटफुल टू बिकॉज रोज़ मेरे यहाँ अखबार ज़रूर आता था रेगुलरली, और टीवी तो होता ही था। सुबह मैं बैठ जाता, नोट्स लिखते, शाम तक फिर मैं उसको कंपाइल करता। तो मेरा एक आइडिया था कि मैं रोज़ रोज़ का मेरे इंसिडेंट्स विद माई इमोशंस क्लब टुगेदर आई शुड राइट। और उसके अंदर बहुत चीज़ें गुजरी जो हमको सब पता है, तो मैंने इसके लिए ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया उसमें, बिकॉज वी नो ऑल दैट। जो मैंने हाईलाइट ज़रूर वो इसलिए किया है कि देर इज समथिंग टू डू बियॉन्ड वॉट वी वर शोन, what was my feelings towards it and what should have been happened otherwise. ये सब करते करते I started enjoying myself so much that रात कब होती थी पता ही नहीं चलता था। उन दिनों में एक और चीज़ बता दूं, मैं अकेला था। There were no family with me, they were all scattered over and they were all wherever they were. तो एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती थी, एक घबराहट सी भी हो जाती थी, एक डर भी लगता था कि अगर कल मुझे कोविड ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं और कोई अलाउड नहीं था, ना मैं जा सकता था। So all those fears were working overtime with me. There were depressions, all this were there with all you also felt. तो मेरे को वो नहीं लिखना था जो आप लोग कहते कि हाँ नई बात क्या लिखे, वो तो हमने भी किया था। So I brought lot of humor in between, lot of the positive sides of it, lot of the connectivity in this, and plus all those areas, including the sector which was most neglected was the street walkers. Nobody mentioned about them during the whole tenure of these days of lockdown. Nobody. Migrants के लिए उन्होंने बात किया, फलाने के लिए, डॉक्टर्स के लिए, frontline soldiers, लेकिन nobody mentioned about the street walkers, which were equally suffering at that moment. तो मैंने, मेरा एक contact था, my friend was working in some of the channels. I called her up. I said, why isn't this sector being brought up? She paused. तो मैं समझ गया कि she realized it, कि there is something missing. And 2 days later, this subject was brought up on the TV. And that made me realize that, okay, we make mistakes. But that doesn't mean that we can condemn the thing and say that, okay, close your books, close your doors, and matter will get over. So thank you so much, and thank you so much for giving me this moment. I've got a handful of copies with me over here. And if anybody would like to go through that, I would appreciate that. But again, please do not think this as something thrown on you of those days as a reminder. It's not a reminder. It is just a fact that happened with us. And because COVID came, like that the COVID I thought said that I came, I saw, but I could not conquer.
And in the end, that's what I would say. The COVID could not conquer in the end. We won as people. And that's the lesson we have learned in our lives, and we should keep this all the time. Don't let these things like COVID, there's nothing in that. Just one of the things which happened through our carelessness, of course. And thank you so much once again. This is the book. This is the book, and I've got a handful of copies with me over here. If anybody would be interested, you're most welcome. Thank you once again. Social entrepreneur, curator of ideas, futurist, vegan, movies buff, and of course advisor to Delhi Lit Fest. Over to you, Dr. Amna. धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। दिल्ली साहित्य महोत्सव मॉनसून एडिशन में लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत। कुछ तालियां हो सकती हैं शुरुआत करते हुए। जीवन में हर पर्व, हर ऋतु कुछ नया खास लेकर आता है, और आज मॉनसून की बारिश का वो एहसास, वो खूबसूरती, वो सुंदरता हम प्रस्तुत करने वाले हैं इस लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन में। सभी उपस्थित साथी जन का स्वागत करते हुए पहले ही आपको बता दें, ये किसी भी कलाकार के लिए जो तालियां होती हैं वो ऊर्जा का स्रोत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि हर प्रस्तुति में आप लोग तालियों से ऊर्जा हमें प्रदान करते रहेंगे। और आइए, इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली साहित्य महोत्सव एक बहुत ही विशेष रूप से लाइव म्यूजिकल प्रस्तुति करता है कि संगीत के साथ साथ संवाद बना रहे, क्योंकि कलाकार जो है वो श्रोता के बिना, वो ऑडियंस के साथ संवाद के बिना अधूरा है। आज जो कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं, सबसे पहले उसके लिए पुनः हम लोग डॉक्टर मृदुला टंडन जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हमारे साथ इस समय नहीं है, लेकिन हमें पता है उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद हर कलाकार के साथ, दिल्ली साहित्य महोत्सव के साथ बिल्कुल है। आइए कार्यक्रम को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपके बीच तारुफ कराते हैं। आपको परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यू नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी साहित्य उत्सव की देश विदेश में, आपकी प्रस्तुति नायाब होती है। हमने आपको देखा है किस प्रकार से तुर्कमेनिस्तान की सरकार के लिए काम हो या हांगकांग से जुड़े हुए साहित्य उत्सव की बात हो, यू हैव बीन अ रॉक स्टार। जी हाँ, एक सिंगिंग सेंसेशन जो सदा एक समन्वय, नए और पुराने दोनों को साथ रखते हुए, फ्यूजन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब अभी हम देख रहे हैं हाल में किस तरह से दूरदर्शन ने जश्न बेगम अख्तर का रखा, आप उसके क्यूरेटर हैं, मेंटोर हैं, और जो विजयी हुआ आप उनको खूब बेहतरीन तरीके से आपने अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं उनके साथ रखी। तो आइए आज दिल्ली साहित्य महोत्सव पे लेट्स वेलकम द सिंगिंग सेंसेशन, हमारे बहुत ही अजीज साथी जनाब शकील अहमद साहब। जोरदार तालियों के साथ शकील साहब हमारे बीच। और ये जो म्यूजिकल तराना है, ये जो म्यूजिकल प्रेजेंटेशन है, ये पूरा एक कारवां है। और पूरे अदब के साथ मैं आप सबके बीच इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ गिटार पर पंडित रतन प्रसन्ना जी। जोरदार तालियां हो जाए रतन जी का स्वागत करते हुए। ये जो तालमेल है, वहाँ सारंगी भी खूब बेहतरीन तरीके से साथ देने वाली है। हमारे साथ सारंगी पर हैं रहमान साहब। जोरदार तालियां हो जाए, सैयदुर रहमान साहब हमारे साथ सारंगी पर। और तबला पे साथ दे रहे हैं जनाब आदिल खान साहब। शकील साहब, संवाद की करते हुए शुरुआत। कन्वर्सेशन में मैं खास तौर से चाहूँगा, मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ आज डॉक्टर आमना मिर्जा बैठी हुई हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। शकील साहब, सबसे पहले दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का, अजय शर्मा साहब का, और जितने मेम्बरान हैं लिटरेचर फेस्टिवल के, जितने भी लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ। आज की शाम का आगाज़ जैसा आमना जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। दिल्ली साहित्य उत्सव में लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, संगीत संवाद को आगे बढ़ाते हुए शकील साहब, हर ऋतु, हर पर्व कुछ नया जीवन में खास लाती है। तो आइए इसी बात पे जीवन की इस यात्रा को एक नई रफ्तार देते हैं आपकी गजल के माध्यम से। मॉनसून के नाम, साहित्य के नाम, हम सब कला प्रेमियों के नाम, आइए रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और तालियां हो जाएं जोरदार। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ऋतु की बात चल रही है। तो पहली गजल इससे मुताल्लिक गाऊंगा।
पास नहीं, सावन की घटा मेरा साजन, मेरा साजन, मेरे मेरे मेरा साजन मेरे पास नहीं, सावन की घटा जाओ रे कहीं। दोस्तों, गजल जितने बैठे हो मैं समझता हूँ कि सबको सब कुछ पता होगा, लेकिन गुस्ताखी होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गजल के लफ्जी माने हैं बातें करना। दुनिया जितने जो गजल गो हैं आप सुनते हैं, सब गायकी गाते हैं, मैं गजल पढ़ता हूँ और बात करता हूँ उनसे, क्योंकि बातचीत चल रही है कि मेरा साजन मेरे पास नहीं। कहते हैं मुझको रुलाने आई है, मुझको रुलाने आई है, गम के बादल लाई है, गम के बादल लाई बरसेगी मैं तरसूंगी, बरसेगी मैं तरसूंगी, मुझे तेरा बरसना रास नहीं। मेरा साजन, मेरा साजन मेरे पास नहीं, सावन की घटा जो पवन के आएंगे, झोंके जो पवन के आएंगे, मेरी सोनी प्रीत जगाएंगे, मेरी सोनी प्रीत जगाएंगे, मेरे नैना नींद बहाएंगे, तुझे इतना भी एहसास नहीं कि मेरा साजन मेरे पास नहीं, मेरा साजन मेरे पास
थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, सावन का, बारिश का, मॉनसून का बहुत ही गहरा एहसास। इस एहसास को शकील साहब थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि किस तरह से हर ऋतु जो है उसकी एक अपनी एक लय होती है, और यही मौसीकी के साथ भी है कि वो दिव्य है। संगीत जो है वो दिव्य है, वो कुछ जिंदगी में नया प्रस्तुत करती है। तो आइए कारवां को आगे बढ़ाते हुए कुछ अगली प्रस्तुति आपकी इसी भव्यता के नाम, संगीत के नाम, जीवन के नाम, हर पर्व में जो खास है उसके नाम। एक गीत पेश कर रहा हूं आपके सामने। मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि लफ्ज बातें करना है तो बात ही करूंगा। निगाहें दिल पे लगी है, उदास बैठे, निगाहें दर पे लगी है, उदास बैठे हैं। तुम्हारे आने की हम लेके आस बैठे हैं। शाम वादा था टल गया होगा, आने वाला मगर नहीं आया। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्था मेरा दिल दामन में छुपा रखो। पुरशे दिलो जायूंगी तासुब की छुपा रखो। पुरशे दिलो जायूंगी तासुब की छुपा रखो। है रात अंधेरी चौखट पे दिया रखो। शायद के वो आ जाए, शायद के वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्था मेरा दिल दामन में छुपा रखो। पुरशे दिलो जायूंगी तासुब की छुपा रखो। पुरशे दिलो जायूंगी तासुब की छुपा रखो। है रात अंधेरी चौखट पे दिया रखो। शायद के वो आ जाए, शायद के वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। जी, इंतजार हो रहा है कि शायद कि वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा। डर जाए न रास्ते में सुनसान, पड़ा होगा।
याद आ ही गई होगी, याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए ना रास्ते में, सुनसान पड़ा होगा, सुनसान पड़ा होगा, सुनसान पड़ा होगा। मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा, याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए ना रास्ते में, सुनसान पड़ा होगा, मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, मुद्दत से नहीं आया अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो घर भूल गया होगा, आकर न पलट जाए, आकर न पलट जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बनाओ। एक थॉट है दिमाग में चल रहा है, क्या मेरी लगन उसको वैसी ही रही होगी, क्या मेरी लगन उसको वैसी ही रही होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी, क्या मेरी लगन उसको वैसे ही रही होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी, क्या चाह मेरी उसको वैसी ही रही होगी, क्या चाह मेरी उसको वैसी ही रही होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी। आकर न पलट जाए, आकर न पलट जाए, दरवाजा खुला रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बनाओ, गुलदस्ते बनाओ, गुलदस्ते बनाओ, बना रखो। बहुत खूब शकील साहब। और जब आप अपना कलाम प्रस्तुत कर रहे थे, जिस तरह की तालियों की गड़गड़ाहट थी सब जगह, वो बता देती है कि आपका जो कलाम है वो हर दिल तक पहुंच रहा है। और यही दिल्ली साहित्य महोत्सव मॉनसून एडिशन का भी है कि कहीं मेन गंतव्य है कि जो मौसीकी, जो संगीत, जो संवाद है वो हर दिल तक पहुंचाना है, दिल से दिल को जोड़ना है। यही तो कला का काम है कि हर दिन कुछ नया सीखना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विभिन्न साहित्य उत्सव पर हम कलाकार जन, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हम भी एक कलाकार हैं, क्योंकि हर दिन हमें कुछ नया सीखना है। विभिन्न साहित्य मंच पर जब भी शकील साहब मिलते हैं, उनकी कुछ खास प्रस्तुतियां हैं जो बहुत ही हिट हैं और हर दिल अजीज हैं। हम आप सबकी भी फरमाइशें भी ज़रूर हम लोग देंगे, लेकिन इस समय शकील साहब की जो दो खास प्रस्तुति हैं, तुम अपना रंजो हम या बात करनी मुझे मुश्किल, जी हाँ, जो खास गज़ल है शकील साहब बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। और आज दिल्ली साहित्य महोत्सव पर तुम अपना रंजो गम साहिब साहब की प्रस्तुति डॉक्टर आमना का की फरमाइश।
आपकी मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज मैं डॉक्टर आमना के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। मुलाकात तो हमेशा बहुत जगह रहती है। आप इतनी मतलब मशहूर हस्ती हैं, इतनी फेमस हैं, सब जानते हैं और इतनी काबिलियत रखती हैं अपने आप में। और मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम अपना रंजो या थोड़ी तालियां होती हैं, इतना अच्छा गाना है। और मैं आप सबको बता दूं, तुम अपना रंजो गम ताहिर साहब की प्रस्तुति है। मुझे दे दो, तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम ये दुख हैरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो ये माना मैं किसी काबिल नहीं इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, बुरा क्या है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम मैं देखूं सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई के लिए अपनी निगहबान मुझे दे दो, कोई के लिए अपनी निगहबान मुझे दे दो, अपना रंजो गम अपनी परेशानी बहुत खूब, बहुत खूब। शकील साहब पूछना चाहते हैं, अगली प्रस्तुति मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे या बात करनी मुझे मुश्किल? भाई दिल्ली साहित्य महोत्सव तो तालियां हो, जोर से कहें, ये हुई ना बात। दिल्ली's own लिटरेचर फेस्टिवल, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम तेरी महफिल में, लेकिन तेरी महफिल में, लेकिन मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने वाले तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले स्वागत है मनीष
जान भर के गम या तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना हो, ये गम होगा तो कितने गम ना हो। तेरी महफिल पेश कर रहा हूं। अगर इत्तेफाकन मिल भी जाए, मुझे यकीन है जब मैं गज़ल शुरू करूंगा सबको पसंद आएगी, क्योंकि मैं अपनी पसंद की बोल रहा हूं। मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो,
हो। जान जाती है जब उठ के जाते हो, तुमको अपनी कसम जान जा, बात तेरी मेरी मान लो, आज जाने किस दिन मौजूदा हालात पर वक्त की तेरी जिंदगी वक्त की तेरी जिंदगी है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद, चंद घड़ियां यही है जो आजाद, इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, टाइम कम है, फरमाइशें ज़्यादा हैं, इसलिए मुख्तसर गा रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेहजार लखनवी साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। मनीषा अमोल जी अब कहीं हो तो आगे आ जाए प्लीज़। मैंने देखा था मैं उनको, कहीं देखा है मैंने। ऐ जज्बे दिल गर में चाहूं, ऐ जज्बे दिल गर में चाहूं, हर चीज हर चीज मुकाबिल आ जाए, ऐ जज्बे दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। जी ऐ जज्बे दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, ऐ जज्बे दिल गर में चाहूं, मंजिल के लिए दो गाम चल,
दो गाम चल और सामने मंजिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चल। ऐ जज्बे दिलबर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चल और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिलबर में चाहूं शेर अर्ज कर रहा हूं। ऐ दिल की खलिश चल चल यूं ही सही। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही। चलता तो उनकी महफिल। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही चलता तो उनकी महफिल में। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही। चलता तो उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका दे। उस वक्त मुझे चौंका देना जब साहिब महफिल आ जाए। उस वक्त मुझे चौंका देना जब साहिब महफिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिलबर में चाहूं और ये सवाल सबसे मेरा। मैं जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। मैं जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। मैं जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिलबर में चाहूं। और आखिर शेर पेश कर रहा हूं। ऐ शम्मा कसम परवाने की। कसम दे रहा है। ऐ शम्मा कसम परवाने की। इतना तो मेरी खातिर करना। उस वक्त भड़क कर गुल होना। उस वक्त भड़क कर गुल होना जब रंग पे महफिल आ जाए। उस वक्त भड़क
चलिए एक हम सबके लिए दिल्ली साहित्य महोत्सव मॉनसून एडिशन में शकील अहमद साहब एक खूबसूरत प्रस्तुति हम सब के लिए तालियों के साथ। आइए हम करते हैं इसका स्वागत। संगीत संवाद लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल। अपनी जब बनाई के जब मैं पी के पास गई, जब जब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना नैना मुझसे मिलई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मिलई के बात अदम के गति मेरे मुझसे मेरा मिले के। हाँ जी। नजर नजर में नजर को समझा, नजर का मिलना हुआ बगाना। अरे नजर 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 में
मिला के। अजय जी सुनिए, आपसे कह रहा हूं मैं, लाख माशूक नजर आए सरापा जादू, लाख माशूक नजर आए सरापा जादू, ऐसे ऐसे जिन्हें याद से सदा जादू, न चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू, न चला पर न चला मुझ पे किसी का जादू, तेरी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, नैना मिला के मुझे नैना मिला के। मैंने पूछा क्या कत्ल कीजिएगा, मैंने पूछा क्या कत्ल कीजिएगा, हंसते कहने लगे कि आंखों से। मैंने पूछा कि कत्ल कीजिएगा, हंसते कहने लगे क्या क्या आंखों से। मैंने पूछा कि कत्ल कीजिएगा, हंसते कहने लगे कि आंखों से। इतना कहते ही कत्ल कर डाला उसने आंखें मिला के आंखों से। नैना मिला के मुझे नैना मिला के, बहुत खूब, बहुत खूब। मिला के मुझे नैना मिला के, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया, भैया पकड़ गई मेरे मुझे नैना मिला के। टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, अली दम दम बेंदर, सैली लाल कलंदर, ओ लाल गोरी पति रखियो बैलाओ तुले लाल रे, सिंदरी लाल सेवरगा सती शाबा कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर। तालियां पीछे डाली चाहिए। टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, अली दम दम बेंदर, ओ लाल गोरी पति रखियो बैलाओ तुले लाल रे, सिंदरी लाल सेवरगा सती शाबा कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर। एक बार फिर बहुत खूब, अजय बहुत शर्मा खूब। साहब, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल, डॉक्टर आमना मिर्जा साहिबा और आए वो सभी श्रोताओं का दिल से इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जोरदार तालियां हो बहुत जाएं। हमारे साथ इस समय बेहतरीन कलाकार शकील अहमद साहब, तालियों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। गिटार पे बहुत खूब, बहुत खूब। पंडित रतन प्रसन्ना साहब, जोरदार तालियां। सारंगी पे सैयदुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तबला पे जनाब आदिल खान साहब, और साथ है हमारी फाउंडर फेस्टिवल डायरेक्टर भारती दीदी का खूब सारा आशीर्वाद। मीनू जी, अमित जी, हमारी जो दिल्ली साहित्य उत्सव की बेशुमार टीम है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शकील भाई से और बाकी उनके जो टीम से एक बार नीचे मंच पे आए, और मित्रों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर नासिर जमाल आ जाइए, और मीनू जी आप आ जाइए, और अमित जी आइए, और मैं अपने सारे शकील साहब के साथियों को रिक्वेस्ट करूँगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नासिर जमाल और आमना जी और अमित को मिलके सब लोग मिलके जरा अपने हाथों से, आमना जी दीजिए दीजिए, एक करके दो, आगे आइए, आगे आइए, आजा आजा मित्रों सब बैठे रहेंगे बिकॉज वी हैव वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशंस टू हैपन। द ऑथर्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड हियर। Mr. Vikas Swarup is sitting right in front of us. The Slumdog Millionaire author is here. शकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आमना जी, थैंक यू सो मच फॉर मॉडरेटिंग सो वेल। और चारी
इसी तरीके से आप लोग हरे भरे रहें और हम लोग बहुत जल्दी मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शकील साहब।